welcome all the participants and dear panelists for joining us today for this panel discussion on outsourcing. With thanks to Allah that Allah has given us a blessing and life. I would like to start with the words of Quran Path, Rabbi Shrah li Sadri wa Yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. On behalf of Mind Matters and on behalf of Mayman Professional Forum, I would like to welcome you all. This term outsourcing has emerged over the past few years in developing nations as an alternate source of exporting services. Globally, this industry has grown up till the revenue basis of more than $180 billion. And majority share of this revenue source is being bared by India, and second largest revenue contribution is being geared up by Philippines. Countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka are a leg behind, and they are still working on these lines to get the level so that they could grab a little market share, they could proceed forward with a diverse field of services and proceed forward. In order to focus more on this, and in these pandemic situation where Pakistan is continuously facing reduction in their hardcore exports activity, and where youth or youngsters is a majority of amount of the population, and they are actually facing job less situation, they are facing difficulties in getting new jobs. We are getting very difficult situation in terms of economic position. We thought that we should start with this initiative of outsourcing, encouraging people that we should focus on this kind of area, provide the services. There are so many freelancing tools as well. We'll be discussing on payment solutions, freelancing tools. How should we proceed with starting up a company? How should we approach international market? And for this, we have three prestigious panelists, young entrepreneurs with us today. All of them have started their journey. They are providing services across the globe, and we'll be discussing various questions with them. First of all, I would like to welcome our first panelist, Mr. Saad Jangra Saab, who has got exposure in IT and has got experience of more than a decade. Secondly, I would like to welcome Ms. Laila Bilal. She has both diverse experience as a copywriter. She has been servicing in Middle East countries, and she will be discussing more about herself in the passage, because it's very difficult for us to explain so many things for which we are very new to it. So we'll realize the fact that it is very lucrative, very encouraging to see that there are so many youngsters working on this area, and it's really difficult to get to this path and level. So they will definitely share a story, and we'll place the questions to them as well. And a third panelist is Mr. Ilyas Anis, who is working and leading, in fact, a BPO firm. He has worked for more than 7 years in this industry, and he's also serving more than 100 clients across the globe. So I welcome you all to this panel discussion. Just to brief first about your experience and exposure, I would like to hand over the mic to Mr. Saad. Saad, welcome to this panel discussion. Can you please briefly describe your experience so that we could gain out of your knowledge? Thank you, Mohsin. Thank you for inviting me. I started my journey, my entrepreneurial journey in 2006. I started my first startup with the name Symbios.pk. It was a lean and humble startup at that time. It was a new time of technology in Pakistan. People were using dial-up internets. We have to pay for incoming calls as well. So nobody knows what is online shopping. I started at that time, and Alhamdulillah, by the grace of Allah, by the prayers of my parents, I hit $1 million sale in 2010 from the startup. And in 2014, I went to MIT. I changed my
complete style of business, learn how these global companies are working. I met the people of Expedia, Facebook, Google, and learn things from them. And then I changed entire journey of my startup, of my entrepreneurial journey. And Alhamdulillah, in 2019, last year, I did the exit from my e-commerce company. I was also in my services business for a decade now, Alhamdulillah. I have a company registered in US, and we are mainly doing IT outsourcing. We are working on mainly digital marketing side and web designing. Also, we have our own products which are running in schools. One of our product with the name Yummy is being used by more than 12,000 schools in the US, and another product which we started last year is being used by hundreds of restaurants. So right now I am in IT outsourcing, and I have a team here mostly in Karachi. The technical people, I have 15 people in US, which are mainly sales and front support, but most of the developers and designers are here in Karachi office. Great. Thank you, Saad. Now I would like to hand over the mic to Ms. Lala Bilal. Ms. Lala, can you please? Yes, my name is Laila Isa Bilal. So I'm basically a copywriting consultant working with the people all around the world. I have so far facilitated 400 brands and with 2,000 projects and above. My expertise is basically uplifting the brand's voice and how do they come out to the world, how they share their values, their foundation, and their vision with the world. I help the clients with that. Currently, I'm leading two teams in two countries. One is here in Pakistan, known as Creative Nagari. We are a dedicated copywriting agency. And another one is in Saudi Arabia. We are working with governmental clients in the governmental sector, including Masjid al-Nabwi and a lot of projects related to the king himself. So we mostly provide a consultancy for content creation and translation in English and Arabic both. Thank you. Thank you, Ms. Laila. Now, a third panelist will be having the chance, Mr. Ilyas Anis. Assalamu alaikum, everyone. So thank you, Mohsin Bhai, for bringing me to this panel session. So I have been working like since 10 years in the field of accounting and financial modeling. So in the start, like for 4 years, like from 2011 to 2015. So we were working on a very small level. Then from 2015, like I started my own office and my own BPO firm. So from that period, like we have been serving around, I could say comfortably, like more than 100 clients all around the globe. And our core skills are like mostly accounting, finance, financial modeling, business planning, investment appraisal. And right now, like we have been serving like in major countries like US, Canada, UK. Great. So these are. Thank you. All the three panelists are from the diverse background, and it's my pleasure to sitting with you and conducting this and moderating this panel discussion. Now I'll be placing few questions to each one of you, which I think should be answered for our youth, and which will help youngsters, not just youngsters, in fact, seniors who have their expertise, they can also start doing their entrepreneurship activity. And we all should get momentum in targeting huge amount of export services, so that those who are living across the globe, they should also know that Pakistan is also a trustworthy service providing nation, and we can also get exposure out of it. By the way, my exposure for outsourcing is very little. I have also done legal process outsourcing course from India, and if to share about the numbers, legal process outsourcing in India has the revenue sharing, which is easily being able to settle the debt financing of Pakistan. So that's a huge number, which India is getting revenue out of it through this legal process outsourcing. So this is also one of the area. We don't have panelists from here, but I'm just sharing my thoughts because I got experience. So first question to you, Mr. Saad.
And outsourcing, when we talk about outsourcing, why for Pakistan? What we have which other countries don't have? What's the specialized area of Pakistan? Thank you, Mohsen. So the world is now globalizing. Businesses are crossing oceans for the right opportunities. I belong to IT sector, so I will talk mostly on the IT outsourcing. Uh, Organizations are outsourcing to multiple geographies in search of unrivaled excellence and affordability. And for tech industry, Pakistan is of course excellent choice for outsourcing because IT sector of Pakistan is the second largest exporter of the country with more than 100% growth for 4 consecutive years. And for this is which is more than any other sector in the country. And information technology is the only sector that can lay the foundation of the knowledge economy, provide tremendous employment opportunities, and play an integral part in increasing the exports of the country. Pakistan means business. It's in our nature. Every Pakistani wants to do business. So now you have seen the incubation centers, ever growing incubators. This is helping creating startup culture, and this ecosystem is now growing ever fastly. Plus, why Pakistan? If you are considering, so we have a competition with India, Philippines, Vietnam, China. Pakistan still has a strong grip on English language. Also, the most important thing is that 64% of Pakistanis are under 30 years of age, which means we are a young population. And this age group is by default tech savvy. So since we are youth population, Pakistan is ideal for outsourcing and especially for IT outsourcing. And I will say that Pakistan is a business friendly country. Not many hurdles. Licensing is easy, especially for tech industry. It's very easy now. Pakistan Software Export Board, Pasha, and other organizations are helping a lot local and startups to establish their business and license. Also, I will say that Pakistan is now ready for 5G. It will help open a lot of new avenues of outsourcing other than IT. For example, if we talk about healthcare, doctors will be doing consultancies, operations, even through video conferencing. A lot of avenues will be open for the drivers. People will be sitting here in Hyderabad and they will be driving trucks in California, inshallah ta'ala. So Pakistan, since we have a youth population, a lot of opportunities we have for the outsourcing. Great. Saad and all the panelists, I would request if any one of you would like to share your screen and like to share any presentation or any slide, if you want to do it, then you are allowed to do it. You can just indicate that you want to do it, and you'll be able to give time for this as well. My first question to Ms. Lala. Professionalism outside Pakistan is very different than here. Yes, that's correct. And you must have encountered this challenge as well. So, oh my God, yes. A lot of times. Yeah. So professionalism is nothing but the way to work, right? So मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये तो सिखाया जा रहा है कि काम क्या होता है, हार्ड स्किल्स, बट काम किस तरह होता है, उसके सराउंडिंग चीज़ें, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती. फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, क्लाइंट से नेगोशिएट किस तरह करना है, क्लाइंट की बात किस तरह समझनी है, किस तरह ब्रीफ लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह समझनी है, ये हमें ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं. और एज अ नेशन आई बिलीव दैट वी टेक थिंग्स वेरी लाइटली, वी डोंट टेक आवर वर्क सीरियसली. ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम हर चीज़ को सीरियसली लें तो हम लोग तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ही हम लोग पड़ जाएं. तो वी टेक एवरीथिंग सीरियसली इंक्लूडिंग अवर वर्क, कि मिला तो मिला वरना अल्लाह मालिक है. तो ये जो अल्लाह मालिक है वाला जो एक एटीट्यूड है हमारी नेशन में, उसकी वजह से हम इतने प्रोफेशनल नहीं बन पाते. हमारी ट्रेनिंग भी नहीं होती, हमारे रूट्स ही इस तरह के नहीं है कि हम हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठाएं. हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों करें, दूसरा करें. ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंबाइन होके हमारे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की तरफ पॉइंट करती हैं.
इस वजह से जो है बहुत सारे शायद हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे जो आसपास के सराउंडिंग कंट्रीज के लोग हैं, वो इस चीज़ में सबकत ले जाते हैं। उनको ये पता है कि क्लाइंट से किस वक्त क्या बात करनी है, और हम ये इस चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। टाइम कमिटमेंट, कि अगर किसी ने टाइम दिया है तो उसी टाइम पे आए। देयर इज़ नो चॉइस। अगर आपने 1 मिनट भी लेट कर दिया, इट मीन्स दैट योर डील इज गॉन। ठीक है, हम ये सब चीज़ें समझ ही नहीं पाते। सो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि अगर हार्ड स्किल्स सिखा रहे हो, उसका सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएं। तो इससे बहुत चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म खुद ही ग्रो करेगा। अब जो हो गया, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी लेवल पे डेफिनेटली ये चीज़ें हमें केटर करने की ज़रूरत है। Right. Thank you, Yes. Chani ji. First question to Ilyas sir. हम बहुत सुन रहे हैं इलियास साहब आजकल कोविड के बारे में. What kind of impact you are seeing in this kind of situation, especially with respect to BPO firm? So initially, in Feb 2020, so when the COVID started, so there has been like huge unemployment, and many of the small businesses they face like their business is stopped and everything is they stop working. It depends on the sector, but most of the like small businesses who has a like trading stores or maybe like a trading place, so their business is stopped. So there has been a huge unemployment, and they have been directed like on the cost cutting. So we face like a lot of like clients, they ask for the cost cutting and these things. But now what I have been observing, I can say in last month, and it's now going on, the medium sized clients, they are now looking for cost cuttings, and they are now seeking like a more freelancers and remote like workplace to get hired. तो मैंने इससे मैंने देखे हैं कि मीडियम साइज जो क्लाइंट हैं, जो बड़े बड़े हाईली पेड होते हैं, तो वो भी अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आ रहे हैं, क्योंकि इनको कॉस्ट कटिंग करनी है। वहाँ पे जैसे मैं एनालिसिस करें कि वहाँ पे जो मिनिमम आवरली वेज है यूएस के अंदर, वो 7.25 आवरली रेट है, $7.25 पर आवर। अब उस हिसाब से अगर हम वहाँ की सैलरी भी अगर कैलकुलेट करने जाएं, तो एक आम बंदी की जो मिनिमम वेज पे है, जो बिल्कुल लो लेवल वर्कर है, मतलब जो पेट्रोल पंप पे जो वर्कर्स होते हैं इस तरह के, जो बिल्कुल लो लेवल्स के होते हैं, उनकी सैलरी भी यहाँ पाकिस्तानी हिसाब से 1,80,000 की बन जाती है, जो यहाँ पे एक अच्छी सैलरी समझी जाती है। तो उस हिसाब से अब उनको ये हो रहा है कि मीडियम साइज की वहाँ की सैलरी एक कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एक वायबल सॉल्यूशन लग रहा है कि रिमोट पे हम भी तक जाएं और आउटसोर्सिंग की तरफ हम सीख करें। और एक ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो नॉर्मली फ्रीलांसर्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि ये दे आर हार्ड वर्कर्स। आई कैन से प्रोफेशनलिज्म की तरफ तो कहूँगा जो लैला ने कवर किया, लेकिन दे आर हार्ड वर्कर्स एंड दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल्स। सो इनिशियली ये लगता था कि कोविड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन नाउ I am seeing and I am forecasting like many medium-sized clients and many enterprises, they are seeking for the outsourcing. So I think like there has been a very good impact due to this COVID-19 which is coming back, and Pakistan gain a lot due to this. Great. साथ साथ आप क्या IT सेक्टर में भी इस तरह का एक्सपीरियंस विटनेस कर रहे हैं? What's the impact? Yeah, so ऐसे ही है। IT सेक्टर जो है, चूंकि मेनली पाकिस्तान में IT सेक्टर जो आउटसोर्सिंग बिजनेस है, इट्स फ्रॉम US mainly, and the lockdown and the COVID situation started a month early in US and the Europe. So yes, it started earlier for the IT stuff, and I want to share my screen so that I can show you a latest survey which was being done by Pasha in the early days of in the late March. So you can see my screen. Yes. Slide show कर दे सर. So in March end में जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं. One of the question was because the most we have the 90% of our cost is the payroll cost of our HR. So every company was going on cost cutting. So one of the question was that, do you think your current workforce can continue working over the next 3 months?
and almost 25% of the company says no. And what happened next? So another thing was, what was our plan for combating this COVID situation? So most of the people, most of the companies made some aggressive sales plan. They started allowing employees to work from home to reduce office expenses, and they did postpone bonus program, other things. And of course, a lot of companies did laid off some employees, but I think most of them were those which were already in the radar. So हमारे साथ भी यही हुआ. बहुत हमारे भी 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो 2-3 साल से पेंडिंग थे. 90% रेडी थे, कुछ रेडी थे, लेकिन उसमें जो है टीम की पार्टिसिपेशन इतनी नहीं आ रही थी. मार्च एंड में हम लोगों ने प्लान किया कि अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो हम कॉस्ट कटिंग में जाएंगे या तो हम अपनी सेल्स बढ़ाएं. और अल्हम्दुलिल्लाह in the month of June we can say that we had achieved our target, and हमारी सेल जो थी, जो नए प्रोजेक्ट्स थे, ऑफ कोर्स जो रेगुलर प्रोजेक्ट्स थे, रेगुलर कस्टमर्स थे, उसमें हमें शुरू में हिट मिला, वो अभी भी है, लेकिन दूसरे एरियाज में वर्क करके हम लोगों ने अपना रेवेन्यू उससे ज़्यादा कर लिया है. और हुआ यही है कि ई कॉमर्स साइड, डिजिटल मार्केटिंग साइड, लोगों के पास वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें सर्ज मिला है, पाकिस्तान में भी, बाहर भी. वी आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट की डाइन इन बंद है, लेकिन रेस्टोरेंट्स को सबको ऑनलाइन आना है. सो वी आर नाउ स्टेबलिंग ई कॉमर्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ हमें बहुत बड़ा जंप मिला. लेकिन जो हमारे होटल इंडस्ट्री के क्लाइंट थे, हमारे रिजॉर्ट्स में भी काफ़ी क्लाइंट्स थे, उसमें हमें हिट मिला. सो एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड कि लोगों ने नए एवेन्यूज फाइंड किए, और किसी ना किसी तरह शुरू में जो स्ट्राइव कर गए, जो और अपने टैलेंट को जिन्होंने मेंटेन रख लिया, वो अब जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कंपनीज जो पहले ऑनलाइन नहीं थी, पाकिस्तान में हो या बाहर हो, सबको ऑनलाइन, सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना है, और वो आ रहे हैं. I would like to add something over here, Mr. Mohsin, if you allow me. जी. Yes, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मिस्टर साद. एक तो ये चीज़ ये भी हुई कि लोगों को फुर्सत मिली अपने बिजनेस से, मतलब के घर में बैठ के सोचने की. सो उनको ये पता था कि आईटी अपना ज़रूर डेवलप करना है, तो इस वजह से आईटी में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया. इसके अलावा ये कि पीपल आर नॉट हेजिटेटिंग नाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग्स. पहले वो बोलते थे नहीं हमारे ऑफिस आए, हमारे ये अपनी टीम को भेजें, तो ये फिर देखेंगे. अभी वो ये कि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद जूम एंड गूगल मीट एंड अदर सॉफ्टवेयर्स. तो उसकी वजह से भी ना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी हो गया आईटी कंपनीज और क्लाइंट्स के बीच में. सो दैट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर ड्यूरिंग द कोविड. ग्रेट. अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उनका बहुत बुरे हालात हैं, तो मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव इसको लिया. मैंने कहा हम बहुत बिगड़ गए थे, मेरे ख्याल से अब हम सुधर गए हैं. बिकॉज नाउ आई रियली अप्रिशिएट इन योर कमेंट, एंड आई आल्सो thanks to Zoom that it's very convenient now to conduct meetings rather than commuting on the road, facing this kind of heavy traffic, and it's really appreciative. In fact, my next question to both of you can answer is this as well, and I would appreciate if Ilyas could also comment on this as well, that how important it is to have second office in any other country outside Pakistan. So Ms. Laila. श्योर. इसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी. एक तो टर्म बीच में आई थी लाइक 10 to 15 years ago, ग्लोबलाइजेशन. सो एवरीबडी वाज लाइक कि हम कहीं से ही बैठ के कहीं के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं. दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. लेकिन कुछ सालों में कोविड से पहले ही द वर्ल्ड हैज मूव टुवर्ड्स ग्लोकलाइजेशन. ठीक है, आप यहाँ से बैठ के अमेरिकन क्लाइंट के साथ काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और उसका एक कल्चरल जो एक सेंस होता है वो ज़रूर चाहिए होता है. तो अगर इस सेंस में बात करूँ तो डेफिनेटली अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू क्रॉस द बॉर्डर्स, देन यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस आउटसाइड द कंट्री जहाँ पे भी आप टारगेट करना चाहते हैं. मिडल ईस्ट हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया. सो इससे क्या होता है कि एक रिलेटेबिलिटी बढ़ती है, आपको क्लाइंट की समझ में आती है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं, और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बैठ के हम नहीं समझ सकते वो क्लाइंट जो अमेरिका में बैठा हुआ है या दुबई में बैठा हुआ है
उसका टारगेट ऑडियंस कैसी है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी अच्छी बातें क्या हैं, ये सब चीज़ें एक लोकल पार्टनर या तो आप उससे बेनिफिट कर सकते हैं या फिर आपकी टीम हो सेल्स की, या लेकिन कुछ ना कुछ लोकल वहाँ पे प्रेजेंस होना लाजमी है. यस, सो अ सेकंड ऑफिस इज डेफिनेटली अ यस इफ यू वांट टू ग्रो. साथ आपके कमेंट्स क्या होंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही, it depends on the nature of business also. In my case, we are working from US, so definitely they have both, the clients have both mindset. एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है उनका कि पाकिस्तान इंडिया से अगर हमें काम करवाना है तो बहुत सस्ता काम हो जाता है, और यूएस कंपनी से काम करवाना है तो वो क्वालिटी काम होता है और प्राइस वही पे करनी पड़ती है. तो ऑफ कोर्स वी आर टू पार्टनर्स, हमारी वहाँ पे ऑफिस है, हम वहाँ पे उनको लोकल प्रेजेंस भी दे रहे हैं, लोकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, लोकल सेल्स वाला टच भी दे रहे हैं. उसका बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी अच्छी होती है और वो प्राइस भी उसी तरीके से पे करता है. तो हाँ, अगर ऑफिस होनी चाहिए दो तो सेल्स एंड सपोर्ट के लिए होनी चाहिए. जो काम वहाँ के लिए होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, जो पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ है वो पाकिस्तान में होना चाहिए. सपोर्ट भी फ्रंट लाइन की सपोर्ट हमारी वहाँ पे है, बाकी बैक एंड की सपोर्ट पाकिस्तान से ही है. और बहुत सारी इवन टेक इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो इसी तरीके से काम कर रही हैं कि उनका सेल्स ऑफिस वहाँ पे है और बैक ऑफिस जितने डेवलपर्स सारे हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, और इट मेक्स अ परफेक्ट पार्टनरशिप आई थिंक. इलियास साहब, आप मुझे बता रहे थे आप भी एफर्ट कर रहे हैं, अभी तो आपका probably दूसरा ऑफिस नहीं है, यू आर टारगेटिंग योर न्यू ऑफिस आउटसाइड कंट्री, बट यू हैव टू ट्रैवल. आपने बाहर ट्रैवल किया, अपने क्लाइंट को मिलने जाना पड़ता है या इस तरह की चीज़ों में, तो आपका क्या इनपुट होगा, क्या इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? और आपके कॉम्पिटिटर्स भी मौजूद है बहरहाल, पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान, तो वो इस तरह के जब डुअल ऑफिस क्या बेनिफिट ले जाते हैं? मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, मतलब कि इसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि मतलब बाहर ऑफिस खोलना और बाहर लीगल एग्जिस्टेंस लेना ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की वजह से बहुत इजी हो गया. मतलब लेट मी गिव द एग्जांपल कि सिर्फ यूके में आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहें, सो दैट्स ओनली लाइक अ £20. यू कैन इनकॉर्पोरेट द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओवर देयर. या कुछ रेगुलेशंस हैं बैंक अकाउंट खोलने के, कुछ रजिस्ट्रेशंस की, यू नीड सम लॉयर और मे बी यू नीड टू ट्रैवल, बट यू कैन लाइक लीगल एग्जिस्ट ओवर देयर. और इमेजिन करें मतलब कि अगर एक क्लाइंट है आपका बायर, उसकी इनवाइसिंग आप पाकिस्तान ऑफिस से करते हैं या फिर उसकी इनवाइसिंग एक यूके ऑफिस या यूएस ऑफिस से जाती है, दोनों में बहुत फ़र्क है. तो क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है. इसी तरह आजकल जो वीओआईपी की जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आप किसी क्लाइंट को यूएस के नंबर से कॉल करें और किसी क्लाइंट को आप एक स्काइप से या पाकिस्तानी नंबर से कॉल कर लें, तो क्रेडिबिलिटी का फ़र्क है. सो एग्जैक्टली मतलब ये एक एज मिलती है आप बाहर इनकॉर्पोरेट करें, और दैट्स वेरी इजी नाउ. ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की वजह से ये सब फैसिलिटीज आ चुकी हैं. सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करना है किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है. यू नीड समवन एक्सपर्ट देयर who can guide you, but it's very easy. It gives you too much credibility and you can gain more clients and you can go on a bigger level due to this. डेफिनेटली कि जो प्राइस जो है वो जस्टिफाई हो जाती है, एज Exactly. मिस्टर साद सर. जी जी कोई और जी. लेटर होगा, कोई और एड्रेस होगा, प्राइस जस्टिफाई हो जाती है. अच्छा, आप तीनों से मैं चाहूँगा इस पे हम कमेंट करें कि हमारे पास जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, सिंस मैं टीचिंग के शोबे से हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाते हुए वो पूछते रहते हैं कि बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे उन्होंने काम स्टार्ट किया. आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं. उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिंस यू ऑल आर हैविंग योर ओन फर्म नाउ, क्या वो स्टार्टिंग के लिए बेहतर होते हैं या कॉम्पिटिटिव बिड्स लेने में बेहतर होते हैं? पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए पाकिस्तान में बहुत डिबेट की जाती है, पेपल नहीं है, क्या करें क्या नहीं किए, क्या वो उसमें फैसिलिटेट करते हैं? आई वुड स्टार्ट विद इलियास, दिस टाइम फ्रॉम यू, देन वी प्रोसीड. या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके कुछ काफ़ी एडवांटेजेस हैं, कुछ कॉन्स हैं. तो मैं जैसे मतलब कुछ डिस्कस कर लूँ कि एक ग्लोबल अप्रोच है कि
किसी भी कोई भी फ्रीलांसर, हमें बाहर के कोई भी कंपनीज हैं उनको कोई आउटसोर्सिंग देखनी है, कोई भी हायर करना है, तो वो दे नॉर्मली दे द फर्स्ट इंस्टेंस दे गो फॉर is like going to posting the job on like freelancing platform or maybe like a remote workplace platform. तो ये ग्लोबल अप्रोच है किसी भी फ्रीलांसर और या किसी भी रिमोट वर्किंग हमें कोई आउटसोर्सिंग करना हो या इवन के फ्रीलांसर को कुछ एक न्यूबी को स्टार्ट लेना है, तो ये ग्लोबल अप्रोच है। अच्छा, दूसरा मैं एक ये कहूँगा कि इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी स्किल्स कोई लर्न करनी हो, कि हमें ये देखना हो कि मैं किस तरह एंट्री करूँ, मैं किस चीज़ में कौन सी स्किल्स में एंट्री लूँ। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू स्टडी द मार्केट प्लेस, वहाँ पे कौन सी डिमांडिंग स्किल्स हैं, कौन से ज़्यादा फ्रीलांसर हैं, किस तरह की जॉब पोस्ट की जा रही हैं, उनके क्या रेट्स हैं, क्या क्या मतलब स्किल्स वहाँ पे चल रही है, वो मुझे एक स्टडी पता होना चाहिए। किसी भी मार्केट में डाइव कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन सी स्किल्स ज़्यादा डिमांडिंग है। एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है इस वजह से, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको एक एस्क्रो फैसिलिटीज़ देते हैं। वो नॉर्मली यूँ करते हैं कि एक अमाउंट, पोर्शन ऑफ द अमाउंट दे टेक फ्रॉम द क्लाइंट एंड दे पुट इन देयर एस्क्रो and the work is delivered, so they just release the escrow to the contractor. तो ये एक फैसिलिटी है। दूसरा एक डायरेक्ट डेबिट हो जाता है क्लाइंट से, हमें आस्किंग मतलब बार बार नहीं बोलना पड़ता, वर्क कंप्लीट हुआ, दैट्स इट, इनवॉइस योर क्लाइंट एंड गेट योर पेड। फिर तीसरा एक इशू पाकिस्तान का ये है कि नॉर्मली यहाँ पे जो एक विड्रॉल, जो बैंकिंग के इश्यूज हैं कुछ, जैसे पेपाल नहीं, कुछ नहीं है, तो इस वजह से एक विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो आपको एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देता है कि बाहर से आपको रेमिटेंस चाहिए तो बहुत इजीली अवेलेबल आ जाती है। और एक बेनिफिट ये होगा कि इसका ये है कि क्लाइंट की एक टेस्टिमोनियल्स होती हैं, एक ट्रैकिंग चल रही होती है कि कोई भी नया क्लाइंट आता है, वो किसी को हायर करना चाहता है, तो उसकी अगर हिस्ट्री ऑफ जॉब परफॉर्मेंस देखना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली इसकी प्रोफाइल से पता चल जाएगा इसने पहले कितने काम किए, क्या सक्सेस स्कोर चल रहा है। और एक और अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से निकलती है, जो मैंने काफ़ी जगह और काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व किए हैं, कि इट brings the JVs with a large enterprise. Like ultimately they outsource like मैं एक क्लाइंट से मतलब वास्ता पड़ा था कि जिस मतलब उन्होंने कोई एम्प्लॉय था, उनको कुछ काम करवाना था, लाइक से डैशबोर्ड इन पावर BI. When this get completed, so they just outsource, like they are very impressed and they just outsource their whole back office to me. So freelancing platform एक स्टार्ट है, लेकिन जो उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं ये कहूँगा कि कोई चीज़ प्रॉज होती है तो उसके कॉन्स भी होते हैं। जैसे एक न्यूबी के लिए आजकल, मतलब 10 साल पहले तो काफ़ी इतना वहाँ भी ईजी नहीं था, लेकिन काफ़ी ईजी था एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मैं ये कहूँगा कि मैनी क्लाइंट्स हैं तो मैनी फ्रीलांसर्स भी हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो एक कंपटीशन वहाँ भी टफ हो गया है कि न्यूबी के लिए कोई ईजी नहीं है इस तरह जॉब सिक्योर करना या प्रोफाइल अप्रूव करवाना। तो इसके लिए कहूँगा कि कोई ऐसी डिमांडिंग स्किल्स में अपनी स्किल सेट करना चाहिए कि प्रोफाइल सेटअप करना काफ़ी ईजी हो। बाकी प्लेटफॉर्म उनकी हाई फीस होती है, इट्स बिटवीन लाइक 5% to 20% फीस। और एक और इशू नॉर्मली ये देखा गया है, जो मैंने इन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में देखा है, कि कभी जैसे डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, मतलब पेमेंट में कोई भी डिस्प्यूट आया, तो नॉर्मली इट इज़ इन फेवर ऑफ क्लाइंट एक्सेप्ट फ्यू सर्कमस्टांसेस, बट in major cases like वो clients को favor मिलती है because they are paying to the platform, so They are paying to the company. Yes. yes, Yeah. exactly, they are the pay. They are the paymaster. उनके लिए client must be. बिल्कुल, exactly. जी लैला, your comments on this. I think as Mr. Ilyas said, it's a good starting point, but it's you cannot grow with these freelancing platforms. The reach is very limited. आप experience gain कर सकते हैं, लेकिन आप ये expect नहीं कर सकते कि you can build an empire out of it. आप काम करें, बेशक करें, लेकिन इसलिए नहीं करें कि मुझे पैसे कमाने हैं या इस तरह कुछ। ये है कि अपनी skills develop करने के लिए, या जैसे मिस्टर खुरम बोलते हैं capability building के लिए। सो दैट उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करें, उसके थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट्स आप फिर जो है उसके लिए पिच करें। सो आई थिंक दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन फॉर इट। बाकी यस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी, बहुत ज़्यादा। इट्स वेरी टफ। एक प्रोजेक्ट के लिए 300-400 बिडिंग्स हो रही होते हैं, तो बहुत मुश्किल है उसमें प्रोजेक्ट विन करना। साथ आपके इसमें भी क्या कमेंट्स हैं? जी, most of them are covered. बस मैं ये कहूँगा कि freelancer market share in Pakistan is almost $2 billion. So these platforms like
Fiverr, Upwork, and most of the people are working there. Or IT, most of them are IT export. Basically, it's considered IT export. और आजकल जो कोविड की वजह से जो सिनेरियो चेंज हुआ है, रिमोट वर्किंग is will be a new norm now. So now people are confident in giving work to freelancers. They don't care whether they are sitting. So पहले ये होता था कि यूएस में या किसी भी कंट्री में एक नॉर्म होता है कि यार फुल टाइम एम्प्लॉय रखें और उनको बुलाएं और साथ बैठ के काम करें. सो नाउ दे आर यूज्ड टू दिस सिचुएशन. दे नोज दैट अब वो जो ऑफिस में बुला के काम होता था, अब वो अगर उसी शहर में अगर वो घर बैठ के काम कर सकते हैं, तो दूसरे मुल्क में भी किसी में घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं. तो और आईटी की जो फील्ड है उसमें वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा था कि एवरेज फ्रीलांसर जो है वो $4,000 पर ईयर अर्न कर रहा है. और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 150,000 आईटी फ्रीलांसर्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं. सो इट्स ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस फील्ड. और बहुत सारे लोग इस वक्त दोनों चीज़ें हैं. बहुत सारे लोग यहाँ आईटी की फील्ड ऐसी है जो जॉब छोड़कर इस फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब जो है रूटीन अब तो सिनेरियो चेंज हो रहा है. अब तो फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं. अच्छा, साथ ये बताइएगा और फिर मैं आप याद से और लैला से भी कमेंट्स इसमें ले लेता हूँ कि कौन से कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए जब आप अदर देन दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो विच कंट्री शुड बी टारगेटेड फॉर क्लाइंटेल बेस. लेकिन इस वक्त का मार्केट शेयर क्या है आईटी. आई विल बी टॉकिंग अबाउट आईटी. सो 52% of IT export, almost approximately 52% of IT export is to US only. More than 52% in US. Second is 8.8 is UAE. UK is 7%, and then other South Asian countries. In my recommendation, yes, of course, US and Canada is number one. And if you are categorizing, second number should be for Australia and UK. And for the third and which is mostly untapped, that is European market, because of the language barrier and certain requirements, certain certifications. Europe is mostly untapped market. US, UK, US, Canada ऐसा ही सबसे बड़ी मार्केट है. बट वही है कि कंपटीशन भी टफ है. बड़ी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. न्यू एंट्रेंट्स के लिए जो है अफ्रीका एंड यूरोप शुड बी अ गुड मार्केट. जी, मिस लैला, योर टेक अवे इन दिस. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मिडल ईस्ट की मार्केट जो है इट्स अ वेरी नीश मार्केट. उसमें जो है उनके तौर तरीके ही अलग हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. वहाँ पे अभी तक इतने ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं. पाकिस्तानीज तो बहुत ही कम है इन यूएई एंड सऊदी इन फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री. सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल. लेकिन बस उसका यही ख्याल रखना है कि कल्चरल उनके नुएंसेस हैं जो वो उनको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. बाकी इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल स्पेशली फॉर सऊदी अरेबिया वहाँ पे, बिकॉज इट वाज ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड बिफोर कोविड. अभी फिर दोबारा सब एफर्ट स्टार्ट होंगी. सो दे नीड पीपल, दे नीड consultants and IT professionals and everything that we Pakistanis do. बहुत ज़्यादा मेगा पोटेंशियल. तो अगर कोई वहाँ पे कर सकता है टैप, that's a gold mine. Seriously, it is. So for sure, Saudi and UAE. Yes, your takeaway in this. Yeah, so they both have covered very good, but I would like to add one point. अभी तो मतलब कोविड की वजह से ये सिचुएशन है कि सब मुल्क बराबर है, मतलब सबके साथ यही कंडीशन हो रही है. तो सबसे बड़ा मेन इम्पैक्ट जो आ रहा है कि जो फ्रीलांसिंग जो दूसरे ममालिक, यूरोप में काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड हो गया, एक बहुत बड़ी मार्केट है. नॉर्वे बहुत बड़ी मार्केट है, वो वहाँ पे आउटसोर्स करने को तैयार है. लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज गैप इज़ द बिग इशू. दे कांट आउटसोर्स. तो हमेशा जैसे हमें यहाँ पाकिस्तानी अगर एक पूछें कि यहाँ पे कोई फर्म अगर वो आउटसोर्स की तरफ मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाह रही है, so normally they should run a campaign in such country where there is no marketing like language barrier. So language barrier सबसे बड़ा एक चीज़ है जिसको हमें मीटअप करना है क्लाइंट के साथ कि ये इशू नहीं बनना चाहिए किसी तरीके से. तो US especially like a North America
जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, नॉट स्पेनिश, और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एंड इवन लाइक आई कैन से अफ्रीका के सब कंट्रीज, जो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, दे आर वेरी बिग मार्केट, एंड ऑल्सो मिडल ईस्ट। अच्छा, एक सवाल बनता है यहाँ पे लैला, अगर आप परमिशन दें मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये सवाल लैंग्वेज बैरियर की जब हम बात करते हैं, और आपने सऊदी अरेबिया की भी बात की, प्लस यू आर इंसिस्टिंग दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न फॉर इन टर्म्स ऑफ कल्चरल activities, Yes, because they give so much value to this as well. So correct. how important it is to learn second language, especially for youngsters, और special जब हम इस generation की बात करते हैं, they are always asking what kind of specialized, हम डिग्री की तरफ जब भाग रहे होते हैं ना, तो आप लोगों की बातों से तो मैं यही जज कर रहा हूँ कि rather than focusing towards MBA कर लें, MS कर लें, ये कर लें, ठीक है, fair enough, we should do it. But rather than this, if you learn French, if you learn Arabic, if you learn Spanish, you'll be able to gauge more. ऐसा है? It will be life changing. It will be life changing if we learn another language. अगर हमारे पास institutes हों जो conversational हमें सिखाएं rather than going after grammar and everything. अगर हमें conversational सिखाएं, business language सिखाएं, oh my God, this will change the face of the country. Because कोई हमारे सोचे, अगर कोई हमारे पास आए, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई हमारे पास आए कि we provide the service, और अगर वो हमसे उर्दू में बात करे, तो हम लोग का ट्रस्ट डेवलप होगा उस पर, हमें लगेगा हाँ यार ये हमें समझता है, हमें जो काम चाहिए ये करके देगा, राइट? सो जो ट्रस्ट होता है वो एक जो फीलिंग होती है, सो डेफिनेटली वो लैंग्वेज और उनके कल्चर को समझने से, उनका फूड समझने से, उनके तौर तरीके समझने से, वो आपके चांसेस आपके डबल हो जाते हैं. सक्सेस रेट इज क्लोज टू 100% इफ यू अंडरस्टैंड एंड स्पीक देयर लैंग्वेज. So, एक last question लेके then we'll move towards the question of participants and those who are going to place the questions. This question is for all the panelists. जो contracts होते हैं उसमें commitments को meet करना, contracts को fulfill करना, और contracts की terms and condition, इस बारे में प्लीज गाइड कीजिएगा यूथ को भी, हम सबको जो हम सुनना चाह रहे हैं कि what should be the comment. We'll start with Laila. So हमारे यहाँ पे इतना कल्चर नहीं है, हम लोग कहते हैं कि अच्छा काम करना है, अच्छा ये है, इतने पैसे लगेंगे, व्हाट्सएप पे ही हमारी जो है वो डील डन हो जाती है और वो पैसे आ जाते हैं एडवांस पेमेंट. लेकिन बाहर जब हम काम करने निकलते हैं तो उनके तो शुरू ही वो हमें चीज़ें ही नहीं बताते हैं जब तक हम NDA साइन नहीं करें, अपना स्टैम्प नहीं लगाएं, सिग्नेचर नहीं करें, ये सब चीज़ें. तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ लेड आउट होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो हम सोचते भी नहीं है कि यार कितने रिविजन्स होंगे, ठीक है, कितने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बनती है तो उसमें कितने रिविजन्स आएंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या हम अनलिमिटेड रिविजन्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. तो बाहर के मुल्कों में हमेशा हर चीज़ लेड आउट होती है, अच्छा इतना टाइम लगेगा, माइलस्टोन एक हफ्ते में ये होगा, इतने वर्किंग आवर्स में होगा, इतने लोग काम करेंगे, इतने पैसे लगेंगे, ये पेमेंट टर्म्स है, इस पे आपकी पहली पेमेंट रिलीज होगी, ये डिलीवर होगा, फिर सेकंड पेमेंट रिलीज होगी. सो ये सब चीज़ें हमें सिखानी चाहिए अब से अपने से यंगर जनरेशन को. इस्लाम में भी यही है कि वट एवर यू एग्री अपॉन जस्ट पुट इट इनटू राइटिंग, put it into writing on some form, कि it becomes easier for both the parties to align their expectations. तो ये सब चीज़ें होती हैं. हम पाकिस्तान में अगर कोई काम करें, आई थिंक मिस्टर साद एंड मिस्टर इलियास विल आल्सो एग्री, अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करते हैं सो वी फॉलो अप फॉर पेमेंट्स फॉर अ ईयर, हम साल तक उनके पीछे भागते रहते हैं कि पेमेंट क्लियर कर दें. लेकिन जब हम बाहर काम करते हैं सो एवरीथिंग इज लेड आउट कि इनवॉइस हम इशू करेंगे 7 वर्किंग डेज में पेमेंट आ जाएगी, इफ द इनवॉइस इज नॉट क्लियर तो वो ड्यूज बढ़ते जाएंगे. तो ये सब चीज़ें राइटिंग में होनी चाहिए. हमें यूनिवर्सिटी में टेम्पलेट्स देने चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, या किसी तरह की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये 1 2 3 4 दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट. इट्स सेलर्स के भी कुछ हुकूक होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए. सो और एडवांस पेमेंट्स, और आजकल तो बहुत ज़्यादा टूल्स हो गए हैं, जैसे कैनवा हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन सिग्नेचर के भी टूल्स हो गए हैं. सो ये सब हमें जो छोटे हमारी जनरेशन है उनको आनी चाहिए कि एग्रीमेंट्स के टेम्पलेट, प्रेजेंटेशंस, प्रपोजल, पिचेस के टेम्पलेट्स, ये सब प्रॉपर होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन. Saad, your takeaway for this question as well, आपके क्या कमेंट्स होंगे? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. IT इंडस्ट्री में दो किस्म से काम हो रहा है, एक तो कंपनीज काम कर रही हैं प्रोफेशनल्स, दूसरा फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं.
तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये रिव्यूज़ का देते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क विद समवन, यू कैन रीड देयर रिव्यूज़, यू कैन सी हाउ एथिकल दे आर, हाउ इज़ देयर वर्क क्वालिटी. सो और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी पता है कि वन बैड रिव्यू ऑफ माय क्लाइंट विल ruin माय portfolio, will ruin my career. So वो अपने कमिटमेंट्स, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. और ये जो फ्रीलांसर्स हैं ये सब उस एरिया में खुद ही ट्रेन हो रहे हैं. और जहाँ बिजनेसेस हैं बड़े, वो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं लैकिंग है. लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो आईटी कम्युनिटी है, आईटी इंडस्ट्री, उसका कंपटीशन मेनली इंडियन कम्युनिटी से है, इंडियन मार्केट से है. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. बहुत सारा बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया से भी राउट हो रहा है, डायरेक्टली इंडिया का क्लाइंट्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं. और जो पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईटी में, पीएसईबी, पाशा, ये भी बड़ा रोल प्ले कर रही हैं पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में, ताकि जो रेपुटेशन है पाकिस्तानी आईटी कम्युनिटी की वो अच्छी से अच्छी हो, वो ग्रो होती जाए. Thank you, Ilyas. Your takeaway for this question? Yeah, so simply I would say like a agreement or contract, it protects you and it also protects your client. अगर आप एक स्कोप और अपनी बाउंड्रीज एक एग्री कर लेंगे तो काम की एग्जीक्यूशन में आपको ही आसानी है, और क्लाइंट को भी पता होगा कि डिलीवरेबल्स क्या हैं. काफ़ी जगह ऐसा होता है, मैंने ये फेस किया इश्यूज, कि कोई अगर स्टार्टिंग स्पेशली फॉर न्यू बी दे डोंट एग्री विद क्लाइंट, तो क्लाइंट उनसे काम ही करवा रहा होता है, आप परेशान ही हो रहे होते, घूम रहे होते हैं. सो रादर देन दिस, लाइक इफ यू एग्री योर स्कोप विथ इन अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट और ये लिखा हुआ जाएगा, तो आपके लिए भी आसानी है और क्लाइंट के लिए भी आसानी है. और अल्टीमेटली लाइक कॉन्ट्रैक्ट बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी होगी और एक इंप्रेशन जाएगा कि हर चीज़ लिखी हुई है, प्रॉपर एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, प्रॉपर एनडीए साइन किए हुए हैं, एग्रीमेंट बन रहे हैं, और इवन की इनवाइसिंग अगर चल रही हो प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर में, रादर देन आस्किंग एंड कॉलिंग, like proper formal invoicing and formal follow-ups, so it ultimately boosts your credibility. Great. Thank you, panelists. Now we move towards the question and answer session. I would appreciate if participants could please the question. Yes, there are questions in the Facebook as well. So, question is that, are there any regulation for ICT, including information security in Pakistan or other countries, for business continuity during pandemic period? It's open for all because there's not being specified. I think ICT है तो साथ this question. देखें, जो कंपनीज पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर एसओपी मिली हुई है कि हाउ वी हैव टू ट्रीट आवर एम्प्लॉयज़, हाउ वी नीड टू मैनेज आवर वर्क प्लेसेस. और जाहिर सी बात है, पेंडेमिक में सभी प्रॉब्लम में हैं. सारी कंपनियां, मैं कहूँगा कि अगर 6 बिलियन पीपल इस दुनिया में, तो सब के सब किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं. आईटी कंपनीज भी अफेक्टेड हैं, और बट जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, इनकी तरफ से प्रॉपर एसओपीज और हमें मिली हुई गाइडलाइंस मिली हुई कि उसको फॉलो करना है फॉर एम्प्लॉयज, फॉर क्लाइंट्स, बोथ. Great. So, any other input by anyone else as well? आप लोग कुछ इस तरह की चीज़ों से फेस करें? I think इलियास या लैला में से कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? No, fair enough. ICT के बेसिस में जी. शुएब साहब, if you could please write your question. You have raised your hand. We'd appreciate if you could write the question in the chat box so that we could. Facebook पे एक और क्वेश्चन भी हमारे पास आ रहा है. Do you guys recommend on invoicing software? Wave, WAVE, it's a free invoicing tool, widely used, बहुत ही easy है. Wave, WAVE. Wave, अच्छा, you recommend for this. आप लोगों का कुछ input? Yes, Yes, साथ आपने. it would save your time. क्योंकि invoicing quotations में बहुत ज़्यादा time लगता है. हम ये cost कभी measure ही नहीं करते, ना इसको estimate में लगाते हैं, लेकिन it takes a lot of time. So definitely anything which reduces your paperwork and your time, then yes.
वैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है जी इलियास साहब. I would love to hear from you as well because you are working in this BPO firm. So please go ahead. या सो पेपाल वाली बात एक आई थी बीच में, मैंने कहा वो रह गई. तो जी. पेपाल यहाँ पे नहीं है, तो उस पर मैं ऐड कर दूं कि कुछ रेगुलेशंस हैं, इनकी वजह से पेपाल नहीं आया. और ये एक गलत परसेप्शन है कि यहाँ पे कोई एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के पेपाल नहीं है. बेसिकली लाइक पेपाल ना आने का एक मेन इशू ये है कि FATF और AML की कंप्लायंसेस की वजह से पाकिस्तान अभी मीटअप नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह विल मीट सून. बट पेपाल इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. लाइक इनवॉइसिंग के लिए बहुत अच्छे और चीपर टूल्स हैं देन पेपाल. Like I would say Pioneer. Like it's the best solution which I normally use myself. Like you can get your payment very easily, and there is one other software like TransferWise. Like यहाँ पे ये companies ने अपने local bank account भी खुलवाए हैं. Like TransferWise and Pioneer. Like they are the non-resident like a permanent establishment के तहत इन्होंने यहाँ पे account भी खुलवाए हैं. और बहुत easily मतलब आपको within few hours आपके payment आपके account में credit हो जाती है. So I will write the name in these clients. They also provide the tools for the invoicing, and for the newbies, like they can very easily get the payments into your bank account. Great. आप चैट बॉक्स में भी इसको टाइप कर सकते हैं. शोएब इब्राहिम साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका हैंड रेज हुआ था. अच्छा, another question. TransferWise हो yes guys. Another question on the Facebook, which is regarding what kind of taxes to be paid on earnings. BPO firm से ताल्लुक है इलियास साहब. Yeah. So यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मतलब एक गवर्नमेंट ने काफ़ी इसको इंकरेज किया है, और ये तकरीबन शुरू से ही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी फॉर्मली मतलब जो आपकी जो भी रेमिटेंस क्रेडिट होती है तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, बीइंग लाइक IT इनेबल्ड सर्विसेज. और IT इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर नॉर्मली IT, ह्यूमन रिसोर्स, कॉल सेंटर्स और इवन के अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, और तकरीबन जो सर्विसेज हम आउटसोर्स करते हैं वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है. तो इस वजह से आपको उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं देना, बट प्रोवाइडेड लाइक देयर आर फ्यू कंडीशंस लाइक व्हेनेवर इट्स क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट, सो इट शुड बी फॉर्मल चैनल, लाइक प्रॉपर चैनल हो जब वायर ट्रांसफर आई हो. और दूसरा ये कि आपको बैंक से अपना PRC कलेक्ट करना है, जो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होते हैं उनका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, अपने पास एक प्रॉपर फाइल्स होनी चाहिए. और जस्ट एंड ऑल्सो यू हैव टू डिक्लेयर इन योर इनकम टैक्स रिटर्न लाइक इट्स एग्जाम्प्ट, but it does not mean like is official. Yeah, official. In terms of Senate. Official. Yes. And there is no taxes actually, we just need to go through the regulations actually. Yes. Okay. I would like to add over here that अभी जून 2020 तक जो एग्जाम था, अभी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया है कि एक साल के लिए और बढ़ाएंगे इस एग्जाम्शन को या नहीं. So we are still waiting on that decision. लेकिन for now all IT support services, हाँ कुछ भी नहीं है. They have been extended like 2025. Yeah, I think they have 25. Yeah, I think 25 or 22, but they have extended. Yeah, I saw that. I like there is exact date याद नहीं, but they have extended. Yeah. चलें, exact date निकाल के भेज भी देंगे वो या सब आप हमें निकाल के भेज दीजिए so that we can share with the audience as well. Yeah. अच्छा, there is one more question. This is especially regarding to Saad. As the future of ICT is going towards artificial intelligence, blockchain, and we can introduce such services in Pakistan as well as globally enterprise. बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे तो बहुत सारी पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, और पाकिस्तान से बैठकर बाहर भी काम हो रहा है. इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. शोएब इब्राहिम साहब. जी, वालेकुम. Thank you very much for a very good presentation. अच्छा, मुझे एक दो बातें मेरे जहन में आ रही थी कि एक तो जो रीड कर रहा हूँ कि ग्लोबल साइज इस वक्त जो है हमारी आउटसोर्सिंग की, इट अराउंड $100 billion, और ये ग्रेजुअली बढ़ रही है, और 180 बिलियन सर. 180 बिलियन. तो राइजिंग बड़ा अच्छा इसमें नज़र आ रहा है. CAGR भी बड़ा इसका अच्छा है, तकरीबन 8% जो ग्रोथ आ रही है इसकी. पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि IT बिजनेस का ज़्यादा आउटसोर्स है पाकिस्तान की मार्केट में. बाकी बिजनेसेस हम क्या देख रहे हैं, जैसे लास्ट हमने एक एजुकेशन का सेशन किया था, तो पता चला कि अब एजुकेशन की बाउंड्रीज जो है ना बड़ी श्रिंक हो रही है. आगे जाके बड़े दूसरी एंगल के बिजनेस के पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ केयर है. तो क्या इसको भी उस एंगल से देख रहे हैं आप, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, आउटसोर्सिंग के हवाले से पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से साथ साथ?
इस पे तीनों आई थिंक कमेंट कर सकते हैं तीनों विद रिस्पेक्ट टू ऑल, क्योंकि तीनों का ऑप्शन हो रहा है साथ। आप पहले गो अहेड करना चाह रहे हैं प्लीज। बिल्कुल। एजुकेशन ये जो पहले एक कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन डिग्रीज का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में, और वैसे भी ये एक तरह मतलब ये समझा जाता था कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, नॉर्मली फेक डिग्रीज कहलाई जाती थी। लेकिन अब ये कोविड की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ये वाइस वर्सा टू वे होगा। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ही सिर्फ आउटसोर्स कर रहा होगा, बल्कि अब आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो अगर मैं अपने कराची की या कोई लाहौर की यूनिवर्सिटी में लूँ या फिर यूएस की यूनिवर्सिटी में लूँ तो बात एक ही है। तो अब ये वाइस वर्सा होगा। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ही आउटसोर्स कर रहा होगा, बल्कि यूएस और बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं वो लोग भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को एडमिशन पहले भी दे रही थी, लेकिन अब चूँकि ये कॉन्सेप्ट ईजी हो गया है तो वहाँ जा रहा होगा। और अदर देन आईटी, बिल्कुल जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि इंशाअल्लाह ताला 5G जब आ जाएगा तो एक बहुत सारे एवेन्यू स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आउटसोर्सिंग का काम हो रहा होगा। डॉक्टर्स बैठकर अभी तो शायद सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बाद में वो लोग पूरे ऑपरेशंस मैनेज कर रहे होंगे 5G टेक्नोलॉजी से। लीगल, HR, ये बहुत सारे एरिया थे जो आउटसोर्सिंग जो है पाकिस्तान में हेल्प कर सकता है। जी लैला, आपका इसके बारे में क्या इनपुट है? आई बिलीव कि ये फील्ड है ऐसी कि इसमें अभी ऑनेस्टली हम लोग खुद इतना डेवलप्ड नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी स्कूल के क्लासेस हो रही थी जानने वालों की, तो टीचर ने पूरी क्लास पढ़ा दी, उनको पता ही नहीं चला कि वो म्यूट हुई हुई थी, ठीक है, और बच्चे जो हैंड रेज कर रहे थे एवरीथिंग। सो आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वी आर इन दिस पोजीशन कि हम किसी और को ये सर्विसेज या किसी को ट्रेन कर सकें। हमें खुद अभी एजुकेशन सेक्टर में अब खुद ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें हेल्प की ज़रूरत है। Great. इलियास? तो मैं यही कहूँगा कि ये डिपेंड करता है, मतलब कि कब तक पेंडेमिक रहेगा। अब दूसरे सेक्टर्स के बारे में अभी कुछ कहना कबल उस वक्त होगा, लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन अभी श्रिंक हो रही है, लेकिन जाहिर बात है एजुकेशन करनी तो है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो अल्टीमेटली सेम लाइकवाइज आई से लाइक मीडियम साइज आर नाउ जंपिंग इनटू दिस इंडस्ट्री इन द ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो हो सकता है इंशाल्लाह, और उम्मीद ये है कि एजुकेशन में ये भी आएंगे, लेकिन फिर अनकरीब एक और चैलेंज आएगा यहाँ के एजुकेशन सेक्टर्स को कि उनको फिर ग्लोबली कॉम्पीट करना है। इट्स नॉट अबाउट ओवर हियर, they have to compete like globally, so it will be like a challenging part for the education, but they have to learn and play for it. Great. And one more thing, like I would like to confirm, like I just checked the income tax ordinance like for Pakistan, and it's exempt, like last year इसको exempt कर दिया गया था 2025 तक, so it's exempt under clause 133 of part 1. Great. अच्छा, एक लास्ट इसमें मैं सिर्फ कमेंट है, पाकिस्तान इज कंसीडरिंग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी सून और लेटर। पाकिस्तान में बहरहाल एक तो ये कि इस फाइनेंशियल करेंसीज के बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई रेगुलेशन फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही कि हम क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन को लेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज शरिया कंप्लाइंट के बेसिस के ऊपर भी हैं। तो आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन दिस। अच्छा, वी वुड लाइक टू नाउ conclude the session, and I was just realizing this benefit of synergies. I was just witnessing that all three of you are from different background, and all three of you were benefiting with each other as well. So, and I have witnessed in India as well, एक दूसरे को वहाँ पर बहुत बेनिफिट दे जाते हैं। मतलब आईटी है तो अकाउंटेंसी में हेल्प मिल जाएगी, अकाउंटेंसी है तो राइटिंग में मिल जाएगी, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग की अलग मिल जाएगी, हेल्थ में आउटसोर्सिंग की मिल जाएगी। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सिनर्जीज, देखें पाकिस्तान में या तो बड़े बड़े ग्रुप्स आउटसोर्सिंग के लिए खुद एंटर हों, जो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ हो रहे हैं। इंटरनेशनली तो ऐसा है, मतलब आप कनाडा में जाएंगे तो आपको टाटा की, रिलायंस की एक ह्यूज सी बिल्डिंग नजर आएगी जिसके अंदर एक पूरा सेटअप किया होगा और वो पूरा इंडिया से कनेक्ट हुआ होगा। एंड इफ वी आर targeting those kind of companies and we are going to compete with them, it's too difficult at this point of time. Yes, we can do it, but rather than waiting for those big groups to enter into this thing, I think we should build up synergies. We should get benefit out of each other, जो पाकिस्तान में I think हम बैठ के कर सकते हैं। जब हम ये बैठ के करेंगे तो automatically एक पूरा large size create हो जाएगा और we'll be able to cope up with the competition which we are facing from other nations. So thank you all the participants. I thank
you for your time, for your input, your questions. Thank you, panelists, respected panelists, for your time, your input, and we wish you best of luck. In fact, it's really good to see in Pakistan that since we have experience, what we have experienced, we are sharing with different people, so that youth, youngsters who are coming, they should not feel pessimistic about job market. They should feel optimistic about global network which is available for Pakistan to work on. Thank you all on behalf of Mind Matters and on behalf of Maiman Professional Forum. I thank you all, and stay safe, stay at home, take care. Allah Hafiz. Thank you very much, Mr. Mohsin. Thank you. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.